All right, we're going to start with the top story of the day. Adani Group has issued a statement on the U.S. Justice Department charges, stating that the allegations made by the U.S. Department of Justice and the U.S. Securities and Exchange Commission against directors of Adani Green are baseless and denied them. The Adani Group responded that all possible legal recourse will be sought. Anand, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Anand, obviously, this is something which has been denied by the Adani Group. It's a huge accusation which has been made against them. We are not sure what the basis of these allegations are, but the Congress party was quick to respond and asked for Mr. Adani's arrest right after this news broke. Yeah, Vinik, look, soon after the news broke that U.S. Department has charged Adani for bribery, and in the rupees 2,000 bribery charge was made against Gautam Adani and 7 others of his group people for bribing Indian officials to get the solar plant energy contract in India in different states. And then reacting on those charges, Adani Group today issued a statement calling all the accusations as baseless, and it also said that the United States Department of Justice and the United States Security and Exchange Commission have issued a criminal indictment and brought it a civil complaint respectively in the United States District Court for the Eastern District of New York against our board members Gautam Adani and Sagar Adani. So it said in a statement, the Adani Group said, it said that the U.S. Department of Justice have also included our board members. So we need the Jain in such criminal indictment, and in light of these developments, our subsidiaries have presently decided not to proceed with the proposed USD-dominated bond offerings. The company said in a statement. Earlier in the day, Rahul Gandhi also addressed a press conference and he demanded that Gautam Adani must be arrested, as several of the chief ministers have been arrested in the past for just 10 crore or 15 crore charges, whereas Adani, who has against whom the U.S. Department has made the charges of offering around 2,000 crore bribery, and he is still roaming free as he is being protected by Prime Minister Narendra Modi. So very serious charge was made by Rahul Gandhi, and he also said that we have been demanding from day one since last year that JPC, Joint Parliamentary Committee, should be formed to probe all the Adani deals so that transactions, whatever the Adani Group is carrying, should be made public to the people of the country. And this is what Rahul Gandhi once again reiterated today. And he also said that the SEBI, whose chairman is Mavi Buch, she has not done her job and she must be immediately removed from her post. So Congress completely hashed on the Adani Group and targeted Prime Minister Narendra Modi for safeguarding the Adani Group, especially Gautam Adani. Back to you, Vinny. On these allegations, let's listen in. और मैं उम्मीद करूंगा कि मरकज़ की हुकूमत इसको सीरियसली लेगी और इसकी पूरी तहकीकात करेगी कि ये कैसे हुआ है और इसकी वजह क्या है। उससे पहले भी आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। इतना ही कहूँगा कि इसकी प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है।
भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने ये पाया है कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर। इस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है। काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें, पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। सेबी आज तक उन पे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उन पे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। ये अगर अडानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े, इंडस्ट्रियलिस्ट विकास करें, इंडिया की प्रगति में उनका योगदान रहे, पर इस तरीके से जो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, आज विदेशों में डंका बज रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम इंडियन एजेंसीज थोड़ा स्पाइन दिखाकर उनको सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगी। और ये कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको ब्राइब दे देकर आज यहां तक पहुंचाया कि उनके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि दुनिया भर के सबसे अमीर आदमी बन चुके। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अगर राहुल गांधी जेपीसी का हवाला दे रहे हैं या जो अमेरिकी अदालत में अडानी के खिलाफ जिस मामले की सुनवाई होगी, मैं समझता हूं इसको दो हिस्से में देखा जाना चाहिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में भी इसका जवाब दे दिया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का भी यही मानना है कि किसी भी अदालत में किसी के खिलाफ अगर कोई आरोप लगाया जाता है, उन आरोपों की सुनवाई होती है, और जब तक उस पर न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो तब तक उस व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता है। जहां तक जेपीसी का सवाल है, तो जेपीसी ने पहले भी कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में सेबी की चर्चा नहीं थी, और वैसी स्थिति में अडानी और सेबी को लेकर के इस जेपीसी की मीटिंग में कोई बात नहीं हो पाएगी। अब जब सवाल उभरते हैं तो फिर कांग्रेस को अपना इतिहास भी याद करना चाहिए। All right, well, the Aam Aadmi